مسائل تراویح تراویح دور نبوت اور دور صحابہ میں کیا حکم ہے اس سلسلے میں؟ چنانچہ رمضان مبارک کی ایک اہم عبادت جس کو ہم تراویح کے نام سے جانتے ہیں، تو تراویح یہ ایک رمضان المبارک کی ایکسٹرا زائد نماز جس کو کہہ لیجئے، تو رمضان المبارک کی ایک امتیازی عبادت جیسے روزہ ہے، اسی طریقے سے نماز بھی جو تراویح کے نام سے موسوم کی جاتی ہے وہ ہے۔ جو رمضان المبارک کی ایک خاص اور ایک الگ ہی مبارک راتوں کے نام سے اور مبارک الگ ہی شان کے ساتھ تراویح کے نام سے جانی جاتی ہے۔ اس نماز کے ذریعے رمضان المبارک میں عام طور پر مساجد کی رونق بڑھ جاتی ہے، نمازیوں کی تعداد بڑھ جاتی ہے اور نماز میں لوگ خشوع و خضوع کے ساتھ ایک مہینہ حاضر رہتے ہیں، اور بسا اوقات بہت سے لوگ بڑے ہی اہتمام کے ساتھ تراویح کی نماز کو پڑھنے کے لیے دور دراز کی مسجدوں کا سفر بھی کرتے ہیں، اور عبادت کے شوق میں غیر معمولی اضافہ بھی ہو جاتا ہے، جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں حرمین شریفین کے اندر کہ حج کے موسم میں تو جو رہتا ہے وہ خیر رہتا ہی ہے، عمرے کی ادائیگی کے لیے لوگ زیادہ تر رمضان مبارک کے مہینے میں خانہ خدا کا رخ کرتے ہیں، اور حرم مکی اور حرم مدنی کا ایک عجیب پرکشش منظر جو ہے ہمارے نظر کے سامنے رہتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے تراویح کی اور رمضان المبارک کی برکت سے جو ہے ان دونوں مقاموں کو اور ان کے ذریعے پوری دنیا کے مسلمانوں کو مساجد کے اندر رونقیں بڑھا دیتا ہے، اور پھر جو ہے مسلمان ایک دوسرے کی عبادت کے شوق میں بڑھ چڑھ کر کے بھی حصہ لیتا ہے۔ صحیح احادیث شریفہ سے یہ بات ثابت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان مبارک میں 3 دن مسجد نبوی میں باجماعت پڑھائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن مسجد نبوی کے اندر باجماعت تراویح پڑھائی، باجماعت نماز پڑھائی۔ لیکن جب مجمع زیادہ بڑھنے لگا اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کا غیر معمولی شوق کیونکہ ان کو عبادت کا بہت زیادہ شوق تھا، تو غیر معمولی ذوق اور شوق کو دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خطرہ لاحق ہونے لگا کہ کہیں یہ نماز امت پر اللہ کی طرف سے فرض نہ کر دی جائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر یہ سلسلے کو بہت جلد ہی جو ہے موقوف بھی کر دیا اور ختم کر دیا اس وقت۔ چنانچہ یہ روایت بخاری شریف کی پہلے جلد صفحہ 269 پر نقل کی ہے۔ لیکن ساتھ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کی راتوں میں زیادہ سے زیادہ عبادات انجام دینے کی ترغیب بھی دیتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود عبادات میں انہماک کے ساتھ لگے بھی رہتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص رمضان المبارک کی راتوں کو ایمان اور اخلاص کے ساتھ عبادت میں گزارے گا اس کے سب پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ بخاری شریف کی روایت ہے، پہلی جلد صفحہ 269 پر اس کو نقل کیا گیا، 269 پر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس ترغیب کی وجہ سے حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین رمضان المبارک میں کثرت سے عبادت کا اہتمام کیا کرتے تھے۔ جو لوگ قرآن مقدس کے اس زمانے میں حافظ تھے وہ خود نوافل میں قرآن کریم کو پڑھتے تھے، اور جو حافظ نہیں تھے وہ کسی حافظ کی اقتداء میں قرآن کریم کو سننے کی اس سلسلے میں سعادت حاصل کرتے تھے، جیسا کہ آج ہم میں سے ایک حافظ پڑھاتا ہے اور اس کے پیچھے جو ہے سینکڑوں غیر حفاظ تراویح کی نماز کو سنتے ہیں۔ چنانچہ ثعلبہ ابن ابی مالک قرظی رحمت اللہ علیہ جو مدینہ کے رہنے والے بڑے تابعی ہیں اور عالم ہیں، یہ بڑے تابعی اور بڑے عالم شمار کیے جاتے ہیں،
इनसे जो है हज़रत सालबा इब्न मालिक क़ुरज़ी रहमतुल्लाह अलैह से मुरसलन रवायत नकल की गई है कि एक मरतबा रमज़ान मुबारक की रात में पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम मस्जिद में बनफ्स नफीस तशरीफ़ लाए तो देखा कि मस्जिद के एक गोशे में कुछ लोग जमात से नमाज अदा कर रहे हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरियाफ्त किया, इस सिलसिले में पूछा कि जो तुम लोग वहाँ नमाज पढ़ो ये क्या कर रहे हो कौन सी नमाज है जो तुम पढ़ रहे हो, क्या कर रहे हो? तो किसी ने जवाब में अर्ज किया कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के रसूल, ये वो हजरात है जिनको कुरान करीम हिफ्ज नहीं, यानी बहुत से वो लोग हैं जो कुरान करीम याद नहीं किए हुए हैं। तो हज़रत उबई बिन काब रज़ी अल्लाह ताला नमाज में कुरान करीम पढ़ रहे हैं और ये लोग उनकी इक्तिदा में नमाज अदा कर रहे हैं। ये सुनकर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उन्होंने बहुत अच्छा किया, यानी हज़रत उबई बिन काब रज़ी अल्लाह ताला ने जो इमामत फरमाई, नमाज फरमाई, पढ़ाई, वो बहुत अच्छा कर रहे हैं और ये लोग जो सुन रहे हैं ये बहुत ही अच्छा है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके बारे में कोई नागवारी की बात इरशाद नहीं फरमाई कि तुमने ये क्यों किया। चुनांचे ये रवायत जो है अस्सुननुल कुबरा लिल बैहक़ी जो बैरूत का छपा हुआ नुस्खा है उसकी दूसरी सफ़ा 495 पर है। अब इस तफसील से हमें इतना तो यकीनन मालूम हो गया कि दौर नबूवत में रमज़ान की खुसूसी नमाज, जिसे बाद में इस नमाज का नाम तरावीह के नाम से रख दिया गया और तरावीह का नाम दे दिया, यकीनन ये दौर सहाबा और दौर नबूवत में मौजूद थी। और हजरत सहाबा किराम रज़ी अल्लाह ताला इस नमाज से बखूबी वाकिफ़ भी थे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में हुआ और आपके बाद सहाबा के दौर में हुआ और तन्हा और कभी जमात से उसे पढ़ा करते थे असहाब रसूल। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुनिया से पर्दा फरमा जाने के बाद सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का दौर खिलाफत, आपका दौर खिलाफत बहुत ही मामूली है, तकरीबन 2.5 साल का कुछ अरसा बनता है, कुछ कमी बेशी के साथ। फिर आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौर खिलाफत, आपके दुनिया से पर्दा फरमा जाने के बाद हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पर्दा फरमा जाने के बाद दौर फ़ारूक़ी के इब्तिदाई ज़माने तक हज़रत फ़ारूक़ आज़म अमीरुल मोमिनीन सैयदना हज़रत उमर इब्नुल ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के इब्तिदाई ज़माने तक ये सिलसिला ऐसे ही जारी और सारी था जिस तरीक़े से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौर खिलाफत में था। इस सिलसिला इसी तरीके से चलता रहा। उसके बाद जब दौर फारूकी आया तो इब्तिदाई दौर में भी आपके हुकूमत में ऐसे ही होता रहा जैसा कि सिद्दीक़ अकबर और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में होता था। उसके बाद सैयदना हज़रत फ़ारूक़ आज़म अमीरुल मोमिनीन खलीफ़ा रसूल खलीफ़तुल मुस्लिमीन हज़रत फ़ारूक़ आज़म रज़ी अल्लाह ताला ने ये देख कर कि मस्जिद में तन्हा या इसी तरीके से छोटी छोटी टोलियाँ बना करके तरावीह की नमाज पढ़ते हैं, कुछ 2-4 लोग इधर है, 2-4 लोग उधर है, 2-4 लोग उधर है, तो इस तरीके से छोटी छोटी टोलियाँ बना करके लोग तरावीह की नमाज को पढ़ते हैं। आपने इसको मुनासिब नहीं समझा, चुनांचे आपने इस सिलसिले में मुनासिब ये समझा कि तरावीह की बाकायदा एक जमात कायम कर दी जाए कि जिस तरीके से हम फ़र्ज़ नमाज और क्या नाम है वितर की नमाज पढ़ते हैं और ईदैन में वाजिबात नमाज पढ़ते हैं जमात के साथ, इसी तरीके से आपने तन्हा और टोली टोली छोटी छोटी जमात को देख कर ये मुनासिब नहीं समझा और आपने कहा कि बाकायदा इसको एक इमाम के पीछे सबको मुजतमा कर दिया जाए तो ये कहीं ज़्यादा बेहतर होगा। चुनांचे आपने बाकायदा जमात को कायम कर देने के लिए
ये सोचा कि ये छोटी छोटी टोलियाँ मुनासिब नहीं, बाकायदा जमात को कायम कर दी जाए, क्योंकि जिस ख़तरे वजूब की वजह से जिसका ख़तरा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने महसूस किया था कि जो कि आप नबी है, तो आप जब इसका एहतमाम करेंगे तो मुमकिन है कि ये उम्मत के लिए फ़र्ज़ हो जाए। तो अब यहाँ वो जो ख़तरा था वो अब ख़तरा बाकी नहीं रहा, क्योंकि जिस ख़तरे के वजूब से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जमात तरावीह का सिलसिला मौकूफ़ फरमा दिया था, अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के बाद ये ख़तरा बाकी नहीं रहा, क्योंकि जब आप मौजूद नहीं है तो अब फ़राइज़ का हुक्म तो आ नहीं सकता है, इसलिए जो है अब ये ख़तरा बिल्कुल बाकी नहीं रहा। चुनांचे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुनिया से रुखसत हो जाने और सिद्दीक़ अकबर की दुनिया से रुखसत हो जाने के बाद हज़रत फ़ारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला ने सहाबा के सबसे बड़े कारी और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में हज़रत उबई बिन काब रज़ियल्लाहु ताला ने जो चंद लोगों को नमाज पढ़ाई और उनके पीछे सब पढ़ रहे थे, तो सबसे बड़े कारी जो सहाबा, जिसे हम कहते हैं सदरुल कुर्रा, जिसे हम कहते हैं अपनी ज़ुबान में, तो ऐसे ही सबसे बड़े कारी और सबसे बड़े कुरान के माहिर कह लीजिए, तो सबसे बड़े कारी हज़रत उबई बिन काब रज़ियल्लाहु ताला को तरावीह की नमाज पढ़ाने का इमाम मुकर्रर फरमा दिया, और ये इमाम मुकर्रर करना ये सैयदना फ़ारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला की तरफ से हुआ। और सहाबा किराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम अजमईन हज़रत उबई बिन काब रज़ियल्लाहु ताला की इक़्तिदा में नमाज तरावीह पढ़ने लगे। चुनांचे इस सिलसिले में अगर आपको तफसील देखनी है तो बुखारी शरीफ की पहली जिल्द जो हिंदी नुस्खा है उसकी पहली जिल्द सफ़ा 269 पर इसको नकल किया है हज़रत इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने। अब बाज़ रिवायत से ये बात मालूम होती है कि हज़रत उबई बिन काब और हज़रत तमीम दारी रज़ियल्लाहु ताला ने 11 रकात पढ़ाई, और बात से ये था कि 8 रकात तरावी और 3 वितर है, जिसकी तफसील जो है अस्सुननुल कुबरा लिल बैहक़ी की जो बैरूत का छपा हुआ नुस्खा उसकी दूसरी जिल्द सफ़ा 496 पर इसको नकल किया है। लेकिन अक्सर रिवायात और आसार सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमईन से 20 रकात तरावी का सबूत मिलता है। इस सिलसिले में मैं आपके सामने चंद रिवायात हवाले के साथ नकल करता हूँ अकाबिरीन उलमा के क्या नाम है जो अक़वाल और अहदीस के अंदर जो बतौर ख़ास मुसन्नफ़ इब्न अबी शैबा और अस्सुननुल कुबरा वग़ैरह कुतुब है अहदीस की, उसके अंदर इस चीज़ को नकल किया है। चुनांचे अब्दुल अज़ीज़ बिन रुफ़ई रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि हज़रत उबई बिन काब रज़ियल्लाहु ताला रमज़ान मुबारक में मदीना मुनव्वरा में 20 रकात तरावीह लोगों को पढ़ाते थे, उसके बाद 3 रकात वित्र की पढ़ाया करते थे, जैसा कि आज इस पर उम्मत का तामुल चलता चला आया है। चुनांचे की तफसील मुसन्नफ़ इब्न अबी शैबा जो बैरूत का छपा हुआ नुस्खा उसकी 5वीं जिल्द सफ़ा 224 हदीस नंबर 7766 पर इसको नकल किया है। दूसरे के हज़रत साइब बिन यजीद रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि दौर फ़ारूक़ी में, यानी सैयदना फ़ारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला का जो दौर खिलाफत था, इसमें हज़रात सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमईन रमज़ान मुबारक में 20 रकात बाजमात पढ़ाया करते थे। और ये भी फरमाया हज़रत साहिब रज़ियल्लाहु ताला ने कि हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला के ज़माने में लोग 100 से ऊपर आयतों वाली सूरतें तरावी में पढ़ते थे और लंबे क़याम की वजह से अपनी लाठियों पर टेक लगाकर खड़े होते थे। ये रवायत जो है अस्सुननुल कुबरा लिल बैहक़ी जो बैरूत का छपा हुआ नुस्खा उसकी दूसरी जिल्द सफ़ा 496 पर इसको नकल किया है। तीसरी रवायत यजीद बिन रूमान रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि रसूल के लोग रमज़ान मुबारक में हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु ताला के ज़माने में 23 रकात 20 रकात तरावी और 3 रकात वित्र, इस तरीके से 23 रकात नमाज तरावी पढ़ते थे। 20 रकात तरावी की होती थी और 3 रकात वित्र की होती थी। इसको रिवायत किया है सुननुल कुबरा लिल बैहक़ी में इमाम बैहक़ी रहमतुल्लाह अलैह ने
जो बैरूत का छपा हुआ नुस्खा उसकी दूसरी जिल्द सफ़ा 496 पर। तीसरी सूरत ये कि अबुल खुसैब रहमतुल्लाह अलैह, अबुल खुसैब या अबुल खसीब भी बोल सकते हैं, तो कहते हैं कि हज़रत सुवैद बिन गफला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हमें रमज़ान मुबारक में 5 तरावीहों से 20 रकात पढ़ाया करते थे। ये रिवायत अस्सुनन अल कुबरा लिल बैहक़ी जो बैरूत का छपा हुआ नुस्खा उसकी दूसरी जिल्द सफ़ा 496 पर इसको नकल किया। चौथी सूरत हज़रत अबू अब्दुर्रहमान अस्सुलमी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि हज़रत अली इब्न अबी तालिब, हज़रत अली करमल्लाहु वजह ने कुर्रा हजरात को बुलाया जो कुरान को पढ़ने वाले थे, कुरान को सही तरीके से जानने वाले थे, उन हजरात को बुलाया। फिर उनमें से एक साहब को मुंतखब करके हुक्म दिया कि वो लोगों को 20 रकात तरावी पढ़ाया करे, यानी इमाम के लिए, इमामत के लिए मुकर्रर फरमा दिया हज़रत अमीरुल मुमिनीन हज़रत अली इब्न अबी तालिब रज़ी अल्लाह ताला ने। और उसके बाद हज़रत अली इब्न अबी तालिब रज़ी अल्लाह ताला उन लोगों को वित्र की नमाज पढ़ाया करते थे। ये रवायत अस्सुननुल कुबरा लिल बैहक़ी जो बैरूत का छपा हुआ नुस्खा है उसकी दूसरी सफ़ा 496 पर इसको नकल किया गया है। इसके अलावा हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला की एक रवायत, जिसकी एक रावी पर कुछ गर्चे कलाम भी किया गया है कि ये रावी ज़रा ठीक नहीं है। बहरहाल मजमूई रवायात से ये बात मालूम होती है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रमज़ान मुबारक में 20 रकात अलग से पढ़ने का मामूल था, जिसकी तफसील जो है मुसन्नफ़ इब्न अबी शैबा जो बैरूत का छपा हुआ नुस्खा उसकी 5वीं जिल्द सफ़ा 225 पर इसको नकल किया। और अस्सुननुल कुबरा लिल बैहक़ी जो बैरूत का छपा हुआ नुस्खा उसकी दूसरी जिल्द सफ़ा 496 पर नकल किया गया है। अब ये जो मैंने आपके सामने मज़कूरा रिवायात की तर्जमे बतलाए, मकसूद असल में यहाँ पर यह है कि इन जितनी रिवायात 5-6 रिवायत जो आपके सामने नकल की है, इन रिवायात और आसार सहाबा और आसार ताबईन और जमहूर उलमाए उम्मत और हजरात बशमूल हजरात अइम्मा और अइम्मा अरबा, हजरत इमाम अबू हनीफ़ा, हजरत इमाम मालिक, हजरत इमाम शाफ़ई, हजरत इमाम अहमद इब्न हम्बल रहमहुमुल्लाह हजरात का मुत्तफ़िक़ा फ़ैसला ये है कि तरावी की रकात 20 से कम नहीं है, 20 रकात से ये कम नहीं है। 20 से ज़्यादा के तो अक़वाल मिलते हैं, जैसा कि हजरत इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह का कौल मिलता है, उनके यहाँ तकरीबन एक कौल मिलता है 36 रिवायात का। बहरहाल इसमें अभी बहस नहीं है मुझको, लेकिन 20 के अदद से कम का अइम्मा अरबा में से कोई भी कायल नहीं है। और तमाम आलम इस्लाम में शर्क़न देख लीजिए, गरबन देख लीजिए, मशरिक़ी जानिब देख लीजिए, मगरबी जानिब, शिमाली जानिब, जुनूबी जानिब, उम्मत का अमल यही चला आ रहा है। हत्ता के हरमैन शरीफैन में भी 20 रकात तरावी के पढ़ने का एहतमाम अभी तक होता हुआ चला आ रहा था। और इस कोरोना वबा की वजह से गुज़िश्ता साल 1443 में सऊदी हुकूमत की तरफ से 10 रकात तरावी तख़फ़ीफ़ की का हुक्म दिया सऊदी वली अहद ने, जिस पर उलमा ने तनकीद भी की, लेकिन अब उनके क्या मसाइल थे ये हमें तो नहीं पता। लेकिन चूँकि जमहूर उम्मत का तामुल इसी पर रहा है और सारी दुनिया से इस पर तनकीदें की गई, लेकिन उन लोगों ने 10 रकात पढ़ी। और बाद में उन लोगों ने जो जिनको पढ़ना था वो अपना पढ़े नहीं पढ़े वो तो हमको नहीं इसका इल्म है, लेकिन अभी तक यही मामूल चला आ रहा है कि 20 रकात तरावी हुई है। हमारे अकाबरीन ने भी इस पर तशवीश का इजहार किया था। दारुल देवबंद से भी लेटर लिखा गया और भी मुख्तलिफ मकामात से कि ये इस तरीक़े से आप उम्मत के तामुल और इस तरीक़े से शरी हदूद के अंदर इस तरीक़े से आप इस नमाज के अंदर तख़फ़ीफ़ मत कीजिए, और भी बहुत सारी कही गई बातें। बहरहाल तो उम्मत का तामुल और हरमैन शरीफैन के अंदर भी 20 रकात तरावीह के
पढ़ने का मामूल आज तक चला आ रहा है। इसलिए तरावी 20 रकात पढ़ने का एहतमाम करना चाहिए और इसमें किसी मुसलमान को किसी किस्म की कमी और कोताही नहीं बरतनी चाहिए कि ये रमज़ान मुबारक का एक महीने का मौका हमको मिला है, पता नहीं आइंदा हम रहे ना रहे, हमें मौका मिले या ना मिले, इसका इल्म नहीं, इसलिए इसमें कमी कोताही नहीं करनी चाहिए। अब यहाँ पर ये बात बतौर ख़ास वजाहत कर देता हूँ कि तरावी की रकात के बारे में उलमा के एक तबक़े को उम्मुल मुमिनीन हज़रत अम्मी आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की एक रिवायत से इश्तिबाह हो गया है, जिस पर जमहूर उलमा ने कलाम किया और जमहूर उलमा ने इस सिलसिले में बहस व मुबाहसा किया कि हज़रत आयशा की जो रिवायत है उसका महमल क्या है और दीगर जो रिवायात है उसका महल क्या है, इनको अलग अलग बयान किया है। इसमें इश्तिबा ये हो गया है कि हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने रमज़ान और गैर रमज़ान की नवाफिल को 8 के अदद में मुनहसिर किया है, 8 के अदद में मुनहसिर किया है। और ये रवायत जो है इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने बुखारी शरीफ पहले जिस सफ़ा 154 पर नकल की है। इस रवायत से बहुत से लोग बतौर ख़ास गैर मुक़ल्लिदीन अहले हदीस जो अपने आप को कहते हैं, बहुत से लोग ये इस्तिदलाल करते हैं कि तरावी की रकात भी सिर्फ 8 है, इससे ज़्यादा नहीं। हालांकि इस रिवायत का ताल्लुक़ तरावीह की नमाज से नहीं है। जमहूर उलमा ने इस पर कलाम किया है, नक़द किया है और ये कहा है कि नहीं, इसका ताल्लुक़ तरावीह की नमाज से नहीं है, बल्कि इस नमाज जो 8 रकात हज़रत आयशा कह रही हैं, इस नमाज का ताल्लुक़ तहज्जुद से है। और तरावी की रकात पर इस रिवायत से इस्तिदलाल करना ये बिल्कुल गैर माकूल सी बात है और ये अक्ल में आने वाली बात नहीं है, इसलिए कि जिस बात पर जुमहूर सहाबा, जुमहूर ताबीन, ताबीन और उम्मत का सवाद आज़म चला आ रहा हो, उससे हट करके हमको अमल करना ये ठीक नहीं है। क्योंकि हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का गैर रमज़ान को शामिल करके जवाब देना ये खुद इस बात की सराहत कर रहा है कि सवाल ऐसी नमाज से मुतालिक है जो गैर रमज़ान में भी पढ़ी जाती है। और जाहिर सी बात है तहज्जुद की नमाज साल में 12 महीने पढ़ी जा सकती है, लेकिन तरावीह ये साल के 12 महीने नहीं है। लिहाजा आपका ये गैर रमज़ान में भी जो तहज्जुद की नमाज पढ़ी जाती है और ऐसी नमाज तहज्जुद तो हो सकती है, तरावी बिल्कुल नहीं हो सकती है, क्योंकि उसे गैर रमज़ान में पढ़ने का कोई भी कायल नहीं है। जुमहूर उलमा और उम्मत का तामुल इसी पर है कि तरावी रमज़ान के अलावा महीने में नहीं है। खुद हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की रवायत तहज्जुद की 8 रकात से कमो बेश के बारे में भी वारिद हुई है, जैसा कि इसकी सराहत जो हज़रत इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने बुखारी शरीफ की पहली जिल्द सफ़ा 153 पर नकल की है। तो चूँकि रकातों की तायीन के मुतालिक रिवायात में आमतौर पर इज़्तिराब पाया जा रहा है, आमतौर पर इज़्तिराब पाया जाता है, लिहाजा इस्तिदलाल ताम नहीं है। तीसरी सूरत ये कि इसी रिवायत में एक सलाम से 3 रकात वितर पढ़ने का भी तज़किरा मौजूद है और जो तबका तरावी के 8 रकात का कायल है वो इस रिवायत के बरखिलाफ एक सलाम से वितर की 3 रकात का मुनकिर है। एक सलाम से 3 रकात वितर के पढ़ने का वो मुनकिर है। इसलिए जब वितर में ये रवायत उनके नज़दीक हुज्जत नहीं है तो तरावी की रकात में हुज्जत कैसे मानी जा सकती है। ये इंसानी अक्ल में, यानी आपका मकसद एक जगह हासिल होता है तो एक जगह आप अमल कर ले रहे हैं, दूसरी जगह छोड़ दे रहे हैं, तो ये शरई हुज्जत नहीं है। इसलिए ये इस्तिदलाल दुरुस्त नहीं है। जिन लोगों ने 8 रकात तरावीह की नमाज कही है उनके पास कोई भी मजबूत दलील नहीं है और ना ही जो है सहाबा और ताबीन अकाबिरीन उलमा का कोई मामूल है और ना ही हदीस में ऐसी कोई बात मिलती है। इसलिए रमज़ान मुबारक की ख़ास इबादत का महीना है, हमें बतौर ख़ास रमज़ान मुबारक के महीने में तरावीह की जो नमाज है, इस तरावीह की नमाज में बतौर ख़ास हमको एहतमाम के साथ तरावीह की नमाज को अदा करने की कोशिश करनी चाहिए। इसलिए कि अल्लाह की तरफ
سے یہ بندوں کے لیے ایک عطیہ ہے جو رمضان المبارک ہی کے مہینے میں دیا گیا ہے۔ رمضان المبارک کے علاوہ مہینے میں یہ نماز نہیں ہے، اس لیے ہمیں خوب اہتمام کے ساتھ تراویح کی نماز میں اور جماعت میں شامل ہو کر کے قرآن مقدس کو سننے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو تراویح کی نماز با جماعت پڑھنے کی 20 رکعات پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ چنانچہ یہ تھوڑی سی تفصیل جو ہے کتاب المسائل کی پہلی جلد صفحہ 515 516 اور اسی طریقے سے 517 3 صفحے میں جو ہے کافی تفصیلی بحث اس کی نقل کی گئی ہے، آپ یہ تفصیل وہاں بھی دیکھ سکتے ہیں۔